ओके, तो हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। दैट इज सेकंड यूनिट, सिमेट्रिक साइफर। सो सिमेट्रिक साइफर लास्ट क्लास में हम देखे थे क्रिप्टोग्राफी। क्रिप्टोग्राफी में क्या देखे? व्हाट आर द गोल्स ऑफ क्रिप्टोग्राफी, व्हाट आर द पॉसिबल अटैक्स ऑन क्रिप्टोग्राफी, व्हाट आर द सर्विसेज फॉर सिक्योरिटी, एंड व्हाट आर द मैकेनिज्म by which we can secure from those attacks. So there are three techniques. If we divide cryptography technique, then it is of three types. One is symmetric encryption technique, second is asymmetric encryption technique, and third is hashing. In symmetric encryption, sender and receiver use the same key for communication, for the communication. Means जिस की से सेंडर एनक्रिप्ट करेगा डेटा को, रिसीवर भी उसी की से डेटा को डिक्रिप्ट करेगा. Encryption in symmetric cipher, symmetric encryption, and decryption is just inverse of encryption, and key used by both sender and receiver are same. While in asymmetric cipher, sender and receiver use different key for encryption and decryption. तो different key क्या होता है? Suppose Alish want to send message to Bob. So what she will do? She will first collect the public key of Bob. First collect the public key of Bob, and she will encrypt the data, and then she will send message to through communication channel to the Bob. And what Bob will do? Bob will use his private key, and he will decrypt the data. Okay, so in asymmetric encryption there are two keys, public key and private key, while in symmetric encryption there is only one key. That key is shared by the both sender and receiver. Third one is hashing. हम लोग इंटीग्रिटी में पढ़े थे कि मैसेज का इंटीग्रिटी लॉस नहीं होना चाहिए. उसके लिए आप क्या करते हो? सम चेक वैल्यू आप सेंड करते हो विथ मैसेज, और वो चेक वैल्यू पहले से किसके पास होता है? सेंडर के पास. And that sender matches both the check values. If both check values are matching, then it is not, the message is not modified or replayed. So that is integrity preserved. So check hashing क्या करता है? जो भी आपका मैसेज होता है, मैसेज के थ्रू एक मैसेज डाइजेस्ट जनरेट करता है. मैसेज डाइजेस्ट इज also called a check value. So मैसेज मान लो मीन्स मैसेज डाइजेस्ट जो होता है वो बहुत ही स्मॉल होता है, जो कि बस उसका काम क्या होता है? चेक करने के लिए कि वो वैल्यू, वो मैसेज जो है आपका इंटीग्रिटी प्रिजर्व है. सो द मेन कॉन्सेप्ट क्या है? सिमेट्रिक एनक्रिप्शन में आप सेम की यूज करोगे, मींस सेंडर एंड रिसीवर विल यूज द सेम की फॉर एनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन, व्हाइल असिमेट्रिक साइफर a sender and receiver will use two different keys, that is called private key and Bob key. Public key. Okay, that is private key of sender and public key of sender. Both हम लोग receiver. अभी आगे हम लोग देखेंगे क्या होता है. तो first we are going to discuss about symmetric cipher. What is symmetric cipher? In second unit we are going to discuss about symmetric cipher. In third unit we are going to discuss about asymmetric cipher. So second unit completely based on symmetric cipher. So what is symmetric cipher? Symmetric cipher, this is the diagram. Okay, here you can see a sender. Sender is sending plain text. Plain text is denoted as X. Okay, he is using some key that is called K. Okay, what he is doing? He is encrypting. There is some encryption algorithm. Here example given AES. कोई भी encryption algorithm use कर सकते हैं. Just for diagram यहाँ पे आप क्या समझो कि कोई एक encryption algorithm आप use कर रहे हो. तो X is the plain text, K is the key. The encryption करने के बाद क्या बनेगा? Cipher text. So here Y represent the cipher text. Cipher text equal to क्या? E, that is encryption function, and K and X are input, where K is the key and X is the plain text. Then this Y is transmitted through insecure channel, and it received by the receiver. What receiver will do? Receiver will use the same key. See here also K, but secret key shared by the sender and recipient.
तो सिमेट्रिक की में होता है कि आप सेम की यूज करते हो, एंड दैट y इज डिस्ट्रीब्यूटेड बाय द रिसीवर। वो रिसीवर क्या करेगा, y को पास करेगा फंक्शन से थ्रू डिक्रिप्शन फंक्शन, एंड उससे क्या यूज करेगा k, दैट इज उसको क्या मिलेगा x, उसको प्लेन टेक्स्ट मिलेगा, एंड x इक्वल टू हियर e रिप्रेजेंट द एन्क्रिप्शन एंड हियर d रिप्रेजेंट द डिक्रिप्शन। इसको क्या क्या इनपुट वैल्यू देंगे, k एंड y इज द साइफर टेक्स्ट एंड k इज द की, और इसको जब डिक्रिप्ट करेंगे तो क्या है, उसको मिलेगा प्लेन टेक्स्ट। सो द मेन पॉइंट क्या है यहाँ पे, सेंडर एंड रिसीवर यूज द की k, so k is the same that shared by the both sender and receiver. This is symmetric key encryption. Clear है? Yes sir. सर साइफर क्या होता है? Anyone, साइफर क्या होता है, कोई बताओगे? वो प्लेन टेक्स्ट को चेंज करते हैं ताकि कोई दूसरा उसे रीड ना कर सके, नॉन रीडेबल फॉर्म में उसे साइफर टेक्स्ट कहते हैं। करेक्ट, समथिंग दैट इज रीडेबल फॉर्म, ह्यूमन लैंग्वेज में रीडेबल होगा तो उसको हम बोलेंगे प्लेन टेक्स्ट। समथिंग उसको रैंडम वर्ड से, कुछ स्कीम से आप उसको रैंडमली चेंज कर दोगे, दैट इज नॉट डायरेक्टली रीडेबल, दैट इज कॉल्ड साइफर टेक्स्ट। फर्स्ट क्लास है क्या जी? नो सर, फिर हम तो साइफर टेक्स्ट हर क्लास में डिस्कस कर रहे हैं। मिस कर दिया इसलिए नहीं पता था। Okay, the ciphertext is the random text and plain text is some knowledgeable text. जिस सेंटेंस से कुछ इंफॉर्मेशन निकले वो प्लेन टेक्स्ट हो गया, और कुछ उसी टेक्स्ट को आप किसी स्कीम के थ्रू रैंडमली उसको कर दो, रैंडमली टेक्स्ट बना दो, कोई भी सेंटेंस बना दो, तो उसको हम लोग बोलेंगे साइफर टेक्स्ट। क्लियर है? ये डायग्राम समझ में आया? यहाँ पे बस ये ध्यान देना है कि यहाँ पे की जो यूज हो रहा है, की बोथ कीज आर सेम, दैट इज शेयर्ड बाय द सेंडर एंड रिसीवर। ओके, एक और डायग्राम इसका वही सेम है। व्हाट एलिस इज डूइंग, एलिस इज टेकिंग वन प्लेन टेक्स्ट, पासिंग थ्रू एनक्रिप्शन एल्गोरिथम with using some key is shared by both sender and receiver, that वो देखो ये प्लेन टेक्स्ट यहाँ पे एकदम क्या है, व्हाइट पेज दिखाया गया, साइफर टेक्स्ट को क्या दिखाया गया, ब्लैक दिखाया गया, मतलब ये हाइड हो गया, ये रीडेबल है, ये रीडेबल नहीं होगा साइफर टेक्स्ट। अब इस साइफर टेक्स्ट को क्या करता है, वो इनसिक्योर चैनल से पास करवाता है। हम अब इनसिक्योर चैनल क्यों कर रहे हैं, ये भी डिस्कस हो चुका है कि जो आपका कम्युनिकेशन होगा वो इनसिक्योर चैनल के थ्रू होगा, कोई भी उस मैसेज को देख सकता है कि क्या एक्चुअल मैसेज पास हो रहा है, लेकिन आपका काम क्या है, कॉन्फिडेंशियलिटी प्रिजर्व करना, कि उस मैसेज को कोई रीड ना कर पाए। वो मैसेज दिख रहा है कि वो पास हो रहा है, लेकिन वो कोई अगर उसको एक्सेस भी कर लेता है उसको रीड ना कर पाए, इसीलिए उस मैसेज को हम क्या करते हैं, साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करते हैं। तो एलिस साइट पे क्या हुआ, प्लेन टेक्स्ट को एनक्रिप्शन एल्गोरिथम विद यूजिंग सम की ऑफ साइफर टेक्स्ट बनाए, उस साइफर टेक्स्ट को सिक्योर चैनल से पास कर दें, इनसिक्योर चैनल से वो रिसीवर के पास पहुंचा, तो रिसीवर क्या करेगा, उस साइफर टेक्स्ट को लेगा, साइफर टेक्स्ट को डिक्रिप्शन एल्गोरिथम से पास करवाएगा, सी हियर सेम की यूज्ड, और जो की आपका होगा वो सिक्योर चैनल से पास होगा, क्योंकि जो आपका एनक्रिप्शन होगा, एनक्रिप्शन जो होगा और डिक्रिप्शन जो होगा, उस कोई भी क्रिप्टोग्राफी एल्गोरिथम सिक्योरिटी उसका डिपेंड करता है की पे। अगर अटैकर को आपका क्रिप्टोग्राफी एल्गोरिथम का की पता चल गया, इसका मतलब कि आपका एल्गोरिथम, आप जो भी टेक्निक यूज कर रहे हो वो सही नहीं है, तो आप की को सिक्योरली पास करते हो। सिक्योरली मतलब थ्रू टेलीफोन पास करोगे, या मान लो आप फिजिकली जाकर उसको बताओगे कि ये की है, ताकि आपका जो कम्युनिकेशन आगे होगा वो कंटिन्यू रहेगा। तो वो क्या क्या साइफर टेक्स्ट को डिक्रिप्शन को पास किया, कि दोनों का सेम है, उसके बाद वो क्या मिलेगा, प्लेन टेक्स्ट मिलेगा। क्लियर है? ये सेम डायग्राम जो लास्ट स्लाइड पे था वही इसमें भी है। यहाँ पे दो एंटिटी लिया गया, एलिस एंड बॉब। क्लियर है? यस सर। ओके, देन अगेन सेम थिंग, एनक्रिप्शन एल्गोरिथम यूज सेम की, ये लॉक यहाँ बना हुआ जैसे सेम की यूज करेगा, तो आपके पास जो की है वही की हमारे पास भी रहेगा, ठीक है, उसी की को यूज करके उस लॉक को ओपन करना है। तो एनक्रिप्शन इज डिफाइंड एज, एनक्रिप्शन में क्या बोलेगा, सी, हियर सी रिप्रेजेंट द साइफर टेक्स्ट, ई के मींस एनक्रिप्शन यूजिंग की के, यहाँ पे ई और के रिप्रेजेंट कर रहा है क्या, की, एनक्रिप्शन यूजिंग की के ऑफ प्लेन टेक्स्ट पी, तो उसको अब जब हम एनक्रिप्शन करते हैं तो क्या मिलता है, साइफर टेक्स्ट मिलता है।
सिमिलरली डिक्रिप्शन, डिक्रिप्शन में आपका आउटपुट क्या मिलता है? प्लेन टेक्स्ट। प्लेन टेक्स्ट में आप क्या करते हो? डीके मींस डिक्रिप्शन यूजिंग की के ऑफ साइफर टेक्स्ट, हियर सी रिप्रेजेंट द साइफर टेक्स्ट। तो डिक्रिप्शन में आपका, तो यहाँ पे क्लियर समझ में आ रहा है? अब अगर आप देखो तो यहाँ पे सी को हम क्या लिख सकते हैं? ई के ऑफ पी लिख सकते हैं। सी को यहाँ पे जैसे क्या लिखा है, यहाँ पे ई के ऑफ एक्स लिखा है, एक्स इज ए प्लेन टेक्स्ट। तो यहाँ पे डी सी को अगर हम रिप्लेस करें सी के जगह पे लिख सकते हैं ई के ऑफ पी। यस सर। समझना है? ये लिख सकते हैं ना इसको, ई के ऑफ पी। क्लियर है? सी की जगह पे ई के ऑफ पी लिख सकते हैं, तो यहाँ पे ई के ऑफ पी लिख दिया है। और इसी तरह डिक्रिप्शन को क्या लिख सकते हो? डीके को, ई के को क्या लिख सकते हैं? डी की जगह पे क्या लिख सकते हैं? डीके ऑफ सी। तो दे, ये दोनों जो होता है एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन आर जस्ट अपोजिट ऑफ ईच अदर। हम आगे देखेंगे और इसमें एग्जांपल लेके कि कैसे होगा, तो उसमें क्लियर हो जाएगा आपको। ओके, इसमें कोई डाउट है अभी? ठीक है, नो सर। ठीक है। तो इसमें हम देखें कि सिमेट्रिक एनक्रिप्शन में देयर आर टोटल 5 कंपोनेंट्स। इसमें क्या क्या है? तो 5 कंपोनेंट्स क्या क्या है? दैट इज, वन इज प्लेन टेक्स्ट। पहला क्या है? प्लेन टेक्स्ट होगा। प्लेन टेक्स्ट इज व्हाट? इज द ओरिजिनल मैसेज और डेटा दैट इज फेड इनटू एल्गोरिथम एज इनपुट। जो एक्चुअल मैसेज आप पास कर रहे हो वो प्लेन टेक्स्ट होगा। क्लियर? एनक्रिप्शन एल्गोरिथम, प्लेन टेक्स्ट को क्या करते हैं? एनक्रिप्शन के कुछ एल्गोरिथम के थ्रू एनक्रिप्ट करते हैं। द एनक्रिप्शन एल्गोरिथम परफॉर्म्स वेरियस सब्स्टिट्यूशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द प्लेन टेक्स्ट। हम लोग देखेंगे कि सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। एनक्रिप्शन क्या करता है? एनक्रिप्शन जो भी आपका ओरिजिनल डेटा है, जो भी आपका प्लेन टेक्स्ट है, ह्यूमन रीडेबल है, उसको रैंडमली उसको चेंज करना, मीन्स ए बी सी को रैंडमली चेंज करना, एक्स वाई जेड समथिंग, कुछ टेक्निक यूज करना है जिससे कि उसको ए बी सी जो एक्चुअल मैसेज है वो ना दिख के एक्स वाई जेड दिखे। तो कोई भी थर्ड पार्टी क्या दिखेगा? एक्स वाई जेड मैसेज दिखेगा, तो उसको ट्रेस ना कर पाए कि एक्चुअल मैसेज क्या था। दैट इज एनक्रिप्शन एल्गोरिथम। यू विल सी व्हाट इज सब्स्टिट्यूशन, व्हाट इज ट्रांसफॉर्मेशन। सीक्रेट की, सीक्रेट की मींस की that is shared between the sender and receiver. The secret key is also input to the algorithm. हम लोग देखे थे कि इनपुट एल्गोरिथम दे रहे हैं हम यहाँ पे। ये क्या है? y k x, तो दो इनपुट है, एक k है और एक x है। x is a plain text and k is key. Then cipher text. Cipher text is scrambled message or random message produced as output. It depends on the plain text and the secret key. साइफर टेक्स्ट क्या होगा? ये डिपेंड करेगा कि आपका प्लेन टेक्स्ट क्या है और आप की कौन सा यूज कर रहे हो। क्लियर? डिक्रिप्शन एल्गोरिथम सिमिलरली एज एनक्रिप्शन, लेकिन डिक्रिप्शन में आप क्या करते हो? साइफर टेक्स्ट, प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करते हो यूजिंग सम की। डिक्रिप्शन में आप क्या करोगे? साइफर टेक्स्ट को प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट करोगे यूजिंग सम की। तो इनपुट क्या होगा? साइफर टेक्स्ट एंड की। तो दिस इज essentially the encryption algorithm run in reverse. It takes the ciphertext and the same secret key and produce the original plain text. Clear है? ये क्या पॉइंट होता है सर? है ना? कोई डाउट? हेलो, ऑडिबल है? यस सर। यस सर। ओके, कोई डाउट है इसमें? नो सर। ओके, सो नेक्स्ट इज सिमेट्रिक एनक्रिप्शन प्रिंसिपल में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, जो भी एनक्रिप्शन हम यूज करते हैं, आप लोग कोई कहीं देखो लिखा हुआ कि दिस कोई वीजा या कि ये सिक्योर चैनल है, इसके थ्रू आप पेमेंट कर सकते हो? कोई देखे हो? कभी ध्यान दिए हो? इट इज 120 बिट सिक्योर, 128 बिट सिक्योर, कहीं देखो लिखा हुआ? इट इज सिक्योर्ड बाय आरएसए, 128 बिट सिक्योर, नहीं देखे हो? नो। ओके, ठीक है, उसका स्क्रीनशॉट हम, ओके चलो अभी ये दिखाएं, अच्छा हमको मिलेगा तो हम बताएंगे नेक्स्ट क्लास में। होता क्या है कि जो भी आप एनक्रिप्शन टेक्निक यूज कर रहे हो, जो भी एनक्रिप्शन टेक्निक आप यूज करते हो, वो पब्लिकली नोन होता है कि आपने कौन सा एल्गोरिथम यूज करके एनक्रिप्शन किया है। तो अटैकर
अटैकर को ये पता होता है कि साइफर टेक्स्ट क्या है। क्लियर है? अटैकर को ये पता है कि साइफर टेक्स्ट आपका क्या है, क्योंकि वो इनसिक्योर चैनल से पास कर रहा है। अटैकर को ये पता है कि आपने कौन सा एन्क्रिप्शन एल्गोरिथम यूज किया है, ये भी पता है, क्योंकि ये हम पब्लिकली बता देते हैं। तो ऑब्वियस है जो एन्क्रिप्शन एल्गोरिथम किए होंगे यूज, वो उसी का जस्ट रिवर्स डिक्रिप्शन भी यूज किए होंगे, क्योंकि बोथ आर जस्ट अपोजिट टू ईच अदर। तो अटैकर को क्या नहीं पता है? अटैकर को क्या क्या पता है? साइफर टेक्स्ट पता है और एन्क्रिप्शन एल्गोरिथम डिक्रिप्शन एल्गोरिथम पता है। द टेक्निक पता है कि कौन सा टेक्निक आपने यूज किया। द अटैकर अगर क्या पता कर लेगा कि उसको प्लेन टेक्स्ट पता चल जाएगा, की पता कर लेगा तो की पता कर लेगा। तो की जो वो पता करेगा, की उसका किस पे डिपेंड करेगा? आपने कौन सा की यूज किया है, वो कौन से किस पे डिपेंड करेगा। ये तो हमने देखा 5 कंपोनेंट उसका। तो की किस पे डिपेंड करेगा कि कौन सा की आप यूज कर रहे हो? प्लेन टेक्स्ट। प्लेन टेक्स्ट पे। प्लेन टेक्स्ट तो कि आपको कुछ रेसिपी बनाना है, तो उसमें आप क्या इंग्रेडिएंट सर डालोगे? वो तो सेंडर पे डिपेंड करेगा ना। किस पे? सेंडर जो सेंड। मैसेज सेंड करता है वही तो फिर की मतलब जो भी है। हाँ, तो की कौन सा यूज करना है वो किस पे डिपेंड करेगा, वही मैं पूछ रहा हूँ। सपोज आपको 2 सब्जी बना रहे हैं, 2 पर्सन है, ठीक है। आपको कुछ एक मतलब दोनों मतलब मान लो पनीर ही यूज कर रहे हैं, पनीर का ही सब्जी बना रहे हैं। तो वो आप कौन सा मसाला डालोगे और सेकंड पर्सन कौन सा उसमें मसाला डालेगा, ये कैसे पता चलेगा? ये किस पे डिपेंड करेगा? ये कम नहीं इंक्रिप्शन एल्गोरिथम। किस पे डिपेंड करेगा कि कौन सा रेसिपी बनाना चाह रहे हैं, कि क्या पनीर का कौन सा वैरायटी बनाना चाह रहे हो, इससे पता चलेगा ना। इस पे डिपेंड करेगा। कोई शाही पनीर बनाना चाह रहा है, कोई पनीर बनाना बटर चाह मसाला बनाना चाह रहा है, तो ये डिपेंड करेगा कि उस पे कौन सा मसाला डालना है। क्लियर है? समझ में आ रहा है? यस इंग्रेडिएंट किस पे डिपेंड करेगा कि कौन सा रेसिपी आपको बनाना है, उसमें कौन सा वैरायटी का रेसिपी बनाना है। सिमिलरली कि आप किस पे डिपेंड करेगा कि कौन सा आप टेक्निक यूज कर रहे हो। क्लियर है? एल्गोरिथम। आप एल्गोरिथम, आप कौन सा एल्गोरिथम यूज कर रहे हो उस पे डिपेंड करेगा कि आपको की कैसा लेना है। तो आप सिमेट्री की साइफर में क्या होता है कि आपको साइफर टेक्स्ट पता होता है, एनक्रिप्शन एल्गोरिथम पता होता है, डिक्रिप्शन एल्गोरिथम पता है। इट इज सेम फॉर असिमेट्रिक आल्सो। तो अटैकर का मोटो क्या रहेगा? क्या मोटो रहेगा? की की पता को करना। अगर वो की पता कर लेगा तो एनक्रिप्शन एल्गोरिथम उसको पता है, साइफर टेक्स्ट पता है, उसको डिक्रिप्ट कर सकता है वो। तो इसमें 2 चीज आपको इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट वन इज कि आपका एन्क्रिप्शन एल्गोरिथम, जो भी एल्गोरिथम आप यूज कर रहे हो वो स्ट्रॉन्ग, दैट इज यहाँ लिखा हुआ है। देयर आर 2 रिक्वायरमेंट टू यूज द सिमेट्रिक एन्क्रिप्शन। फर्स्ट वन इज a strong encryption algorithm. So it is clear why we need a strong encryption algorithm. Clear है? यस सर। So a strong algorithm, and second one is sender and receiver must have obtained copies of secret key in secure fashion and must keep the key secure. और second thing क्या है इस डायग्राम में देखो, we are sending the key from sender to receiver through secure channel. अगर ये चैनल सिक्योर नहीं है आपका तो क्या होगा? अटैकर को की पता चल जाएगा। तो 2 चीज आपको फोकस करना है। फर्स्ट वन, जो भी टेक्निक आप यूज कर रहे हो वो स्ट्रांग हो। हम लोग देखेंगे कि स्ट्रांग क्या होता है, वीक क्या होता है, किस टाइप के एल्गोरिथम को हम बोलेंगे स्ट्रांग है, किस टाइप के एल्गोरिथम को हम बोलेंगे वीक। विल सी। ओके, सो एंड सेकंड थिंग इज द सिक्योर की एक्सचेंज, जो चैनल हम पास कर रहे हैं फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर, इट शुड बी सिक्योर, it should not be traced by the f-dropper. Clear? These are the 2 points. These are the 2 requirements of the symmetric key encryption. Clear? Any यस doubt? Any doubt? किसी को डाउट है?
पता है कि गाड़ी में घूम रहा है, बाहर घूम रहा है। अरे म्यूट कर लो, नहीं तो छोड़ दो यार, क्यों डिस्टर्ब करो बाकी को भी। कौन है ये, म्यूट करो। ओके, so अब now we are going to discuss classical encryption technique. So classical encryption technique को डिस्कस करने के पहले यहाँ तक कोई डाउट है क्या किसी को? क्योंकि ये समझ में आ जाएगा तो आगे आप लोग को इजी होगा। कोई डाउट है? Okay. So before going to discuss about classical encryption technique, we will see some mathematics that are going to use in this cryptography. So first one is set of integer. आपको एक एडवाइस है कि आप कॉपी पेन लेके बैठो, क्योंकि इसमें अभी मैथमेटिक्स थोड़ा स्टार्ट होगा तो वो आपके लिए इजी रहेगा। So in cryptography we are going to represent set of integer by z, ez, we are going to represent by ez। इसमें क्या करोगे, मतलब आपको अगर z लिखा है मतलब आप सेट ऑफ इंटीजर को रिप्रेजेंट कर रहे हो। ओके, तो सम कुछ पॉइंट हैं जो कि हम लोग आगे यूज करने वाले उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। तो सेट ऑफ इंटीजर इज डिफाइंड एज from minus infinity to infinity integer number, that is minus infinity means here some values are represented -2 -1 0 1 2 like this 1 2 3 4 5 clear है। then तो एक कॉपी एक पेन लेके बैठो, उसको लिख लो z set of integer z सम ये वैल्यू। then next is integer division। integer division क्या होता है? suppose what is क्या लिखा है, if we divide a by n, if we divide a by n then we get q and r। क्लियर है ना? अगर a से n को आप डिवाइड कर रहे हो तो कुछ क्वोशिएंट मिलेगा आपको और कुछ रिमाइंडर मिलेगा। क्वोशिएंट इज डिनोटेड एज q and रिमाइंडर इज डिनोटेड एज r। so relation is a equal to q into n plus r, यही होता है ना। suppose a is 5 and n is 12, suppose a is 5 and is 12, then what are the value of q and r? q equal to 2 and r equal to 2 again 2। that in अगर इस फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करें तो कैसे लिखेंगे? 12 equal to 2 into 5 plus 2 लिख सकते हैं ना। आपको बोल रहा है कि आप कॉपी कलम लेके बैठो। और कौन है ये, म्यूट करो। सोनू कुमार शर्मा पता नहीं क्यों ज्वाइन किया है। चलो क्लियर है। 12 can be written as 2 into 5 plus 2, yes or no? Where a is called dividend, q is called quotient, n is divisor and r is remainder। ओके, सो अर्थमेटिक इंटीजर डिवीजन जब भी हम करते हैं तो क्या हमको मिलता है? q quotient एंड रिमाइंडर, दो चीज मिलता है ना। ओके, नेक्स्ट। yes तो suppose this is given a equal to 255 n equal to 11, so what is q and what is r? सिंपल आपको डिवीजन जो बच्चे छोटे क्लास में करते हो वो पता हो, इसमें क्या होगा। हम लोग इसका यूज करने वाले हैं, इसलिए दिस इज इंपॉर्टेंट, दैट्स व्हाई आई एम डिस्कसिंग हियर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ q, व्हाट इज वैल्यू ऑफ r? आलोक कुमार, व्हाट इज वैल्यू ऑफ q? अनम्यूट एंड टेल। आलोक, नॉट प्रेजेंट। आरती कुमारी, yes sir व्हाट इज q, व्हाट इज r? इतना टफ है क्या? सर 23 होगा Q और R हो जाए ओके, 3 दिस इज
So 255 is written as 23 into 11 plus 2. Clear? So Q equal to 23 and R equal to 2. 2. कोई दिक्कत इसमें किसी को No, नहीं है? So जब भी हम डिवीजन करते हैं तो we will give the value of z. Z means any number, any integer number, and we represent it as a equal to q into n plus r, where n is positive number जिसे डिवाइड करने वाले हैं, r is non-negative number. Non-negative means it can be 0 or positive. Non-negative means 0 or positive. r रिमाइंडर 0 हो सकता है ना. और q क्या होगा? q is from set of integer. q is any value from set of integer. जो r का वैल्यू होता है कहां से कहां तक लाई करता है रिमाइंडर? सपोज वी आर डिवाइडिंग एनी नंबर विद n, देन r is from, r का रेंज क्या होगा? 0 to infinity. कोई नंबर को 5 से डिवाइड कर रहे हो तो रिमाइंडर क्या आएगा? 0 to 4. 0 to 4 means 0 to n minus 1. Sorry. Clear? And it is non-negative number. कभी रिमाइंडर का वैल्यू नेगेटिव में नहीं आता है. 0 से नॉन नेगेटिव इसे लिखा गया क्योंकि 0 भी रहता है, इसलिए पॉजिटिव में लिखा हुआ है. तो 0 to n minus 1. It should never be negative. So next, इसका बताओ. A equal to minus 255, n equal to 11. Here say A means the dividend. Dividend जो है आपका क्या है? It can be any integer. Any integer means it can be negative also. See, yes, that is set of negative and 0 and positive number. So it can be negative, but n should always be positive. R should always be non-negative. जो हम क्रिप्टोग्राफी में यूज करने वाले हैं, n can be negative also, but in cryptography we are going to use n should be always positive. R तो हमेशा नॉन नेगेटिव होता है, 0 और वो. तो z का वैल्यू क्या हो सकता है? A का वैल्यू क्या हो सकता है? नेगेटिव भी हो सकता है. So here A is 255. Here A is 255 and n equal to 11. Okay. So what is the value of Q and what is the value of R? Minus 20. तो जल्दी करो, बहुत टाइम लग जाएगा ऐसे. This is the value. Q minus 23. Minus 23 and remainder is 2. what? Minus 2. So remainder is negative. Remainder not possible. Yes. Remainder should be always positive. So to make remainder positive, what we have to do? How can we make remainder positive? 24. What? So minus 24 into 11 or plus Yeah. 9. Means if, minus हो करना. okay, means what are the value of whatever the value of Q, if we reduce the value of Q with one number, which one is greater, minus 24 or minus 23? 23. Minus 23 is greater, larger. So if we reduce that number with 1, means minus 23, अगर हम उसको minus 24 कर देंगे, reduce करना मतलब negative में reduce करना मतलब उसका वैल्यू बढ़ता है ना, negative साइन के साथ 23 24 हो जाता माइनस साइन होगा. So उससे करने से क्या होगा? Okay, tell me answer. What is R? किसने बताया था कि माइनस 24 करना होगा? बताइए आंसर क्या होगा फिर. R का वैल्यू क्या हो जाएगा माइनस 24 R करने से? equal to 9. Not possible. Okay, then R equal to 9. Correct. ये क्लियर है सबको? हम क्यों ये बता रहे थे? आपका रिमाइंडर हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए. सो यहाँ पे Q का वैल्यू क्या होगा? अगर नेगेटिव हो गया तो minus 24 and R is 9. See in this diagram also
Q is any set of integer. It can be negative, it can be 0, it can be positive. So here Q is minus 24. Okay, clear? R is 9. क्लियर है? कोई डाउट किसी को? यस सर। बाकी लोग सॉल्व नहीं कर यस रहे। सर। ओके, तो ये है। तो ग्राफ ऑफ डिवीजन एल्गोरिथम क्या होगा? अगर 0 से छोटा है, पहले हम बड़ा कंसिडर करते हैं, पहले अगर 0 से बड़ा है तो दैट नंबर और उस नंबर के बीच का जो डिफरेंस होगा वो R होगा। यही होता है। अगर वो निगेटिव है, अगर 0 से इधर है लेफ्ट हैंड साइड में, तो क्या होगा? उसका जो रिमाइंडर होता है वो दैट नंबर माइनस ए होता है। ठीक है, here the remainder was -2, so actual remainder is 11 minus 2, that is 9. समझ में आ रहा है? In last case, in last example क्या किए थे? Remainder is just the value, तो पॉजिटिव था तो 0 से बड़ा था तो 2 हो गया। लेकिन अगर निगेटिव है तो रिमाइंडर क्या होगा? दैट वैल्यू 11, ये क्या रिमाइंडर है? -2। तो -2 इसको पॉजिटिव करने के लिए आपको सिंपल क्या करना है? जो भी n रहेगा उसमें उसको ऐड कर देना, 11 minus 2। क्लियर? और उसका जो वैल्यू होगा, Q का वैल्यू जो होगा वो 1 से डिक्रीज कर जाएगा। तो डायरेक्टली अब आप निकाल सकते हो, मल्टीप्लाई करने के अलावा आप डायरेक्टली यहाँ निकाल सकते हो। निगेटिव है तो जो एक्चुअल आपका मल्टीप्लिकेशन करके आ रहा है उससे एक और घटा दो निगेटिव में, और उसके बाद जो रिमाइंडर आ रहा है उसको n के साथ उसको ऐड कर दो। 11 minus 2, एक्चुअली वो सब्ट्रैक्ट हो रहा है लेकिन -2 है तो वो क्या होगा? तो आपको क्या करना है? उसको ऐड करना है तो वो सब्ट्रैक्ट हो ही जाएगा। क्लियर? ओके, सो व्हाट इज मॉडुलो अरिथमेटिक? मॉडुलो अरिथमेटिक का हम यूज करने वाले हैं अभी। तो मॉड आपको पता है कि मॉड कैसे निकालते हैं? जब आप सी में सिंपल सा प्रोग्राम करते होंगे फर्स्ट ईयर में, तो क्या लिखते हो? ए मॉड, अगर कोई नंबर का मॉड निकालना है, मॉड निकालना मतलब क्या निकालना है? रिमाइंडर निकालना है। आप इसका प्रोग्राम किए हो ना इवन ऑड नंबर निकालने का। तो इवन ऑड निकालने के लिए क्या चेक करते हो? इफ ए मॉड या कोई नंबर मॉड 2, मॉड का साइन क्या होता है? %। याद है? तो उसमें क्या चेक करते हो कि रिमाइंडर अगर 0 आ गया तो क्या है? वो इवन नंबर है, अगर नहीं आया तो क्या है? ऑड नंबर है। क्लियर? मॉडुलो मतलब आप उसमें क्या फोकस करते हो? ओनली ऑन रिमाइंडर। सो ये देखो यहाँ पे हमने ये डिस्कस किया अरिथमेटिक क्या होता है। रिमाइंडर में आपको क्या करना है? रिमाइंडर में आपको क्यू पे ध्यान नहीं देना है। क्यू के वैल्यू से कोई मतलब ही नहीं है। आपको क्या मतलब है? ओनली आर शुड बी नॉन नेगेटिव। सो दिस पार्ट रिप्रेजेंट द modulo and this will represent the arithmetic division, and this is modulo operator, modulo arithmetic. In modulo we focus on remainder only, not in the q part, not on the quotient. Clear? Okay, so solve this. 27 mod 5, what will the answer? So in modulo we focus on remainder only, not on the quotient part. Okay, clear है? Suppose आपसे पूछा है 12 mod 5 क्या होगा? तो 12 mod 5 मीन्स 5 से 12 को डिवाइड करो, जो रिमाइंडर आएगा वो आपका आंसर हो गया। मतलब कितना होगा? 2। Similarly, suppose you have given 27 mod 5. What is the value of A? 2. Okay. Second, what 36 mod 12? 0. Okay. Next, minus 18 mod 14? -4. -4. Minus should not be there. हाँ, क्या होगा? तो नेगेटिव में जब भी जाएगा तो क्या करना है आपको? सिंपल ऐड विथ दैट डिवाइजर, मीन्स 14 minus 4 कितना होगा? 10. 10. Then next is minus 7 mod 10. What will be the answer? क्या होगा? 3. कोई डाउट किसी को?
नो सर। किसी को कोई डाउट है? No, sir. ओके, नेक्स्ट। सो सेकंड पॉइंट इज, एक तो मॉडलो आप निकालना, उसको प्रैक्टिस करना क्योंकि आगे हम बहुत यूज करने वाले हैं उसको, पूरे क्रिप्टोग्राफी में उसका यूज है। सेकंड इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। सो ये लिख लो, इन Zn, Zn व्हाट, क्या Zn क्या है? सेट ऑफ इंटीजर n, n नंबर ऑफ इंटीजर है, उसको हम क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? Zn, n नंबर ऑफ इंटीजर। अगर हम वहां पे लिखे Z26 मीन सेट ऑफ इंटीजर कितना है? 26। क्लियर है? अगर हम लिखे वहां पे Z10 मीन्स वो कितना, वो इंटीजर कितना रिप्रेजेंट कर रहा है? 10 वैल्यू को। अगर Z26 लिख रहा है मतलब 26 वैल्यू को। Zn लिखा हुआ है मतलब n वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। So two number a and b are the multiplicative inverse of each other if a cross b, और यहाँ पे 3 लाइन दिया हुआ है, congruence उसको बोलते हैं, is congruence to 1 mod n is equivalent to 1 mod n। तो ये लिख लो, a cross b 3 लाइन देना और 1 mod n लिखो। लिख लिए? कंसिडर करो, एक एग्जांपल दिया है, इफ द मॉडुलस इज 10, इफ द मॉडुलस इज 10 मींस z को किस में रिप्रेजेंट करना है? सी, यहाँ पे जो n लिखा है यही n यहाँ पे लिखा है ना। तो अगर हम मॉडुलस ऑफ 10 बात कर रहे हैं मतलब क्या है? Z10 है, कैन बी आल्सो रिटन एज Z10। अगर हम निकालते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3 क्या होगा? तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3 इन Z10 क्या होगा? तो 3 को ऐसा किस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए? 3 को मींस a is 3, b should be what, इन नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए कि इसका वैल्यू 1 mod n आए। क्लियर है? ट्राई करो और रिज्वाइन करो मीटिंग, टाइम अप हो गया। ओके, यस सर।